Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will be highlighting some of the very important biochemical reactions occurring within the living organism that come under the heading of bioenergetics. The process is known as the cellular respiration, and one of its very significant stages is glycolysis. So by the end of this lecture, you should be able to know what glycolysis is. We will also generally discuss or review the definition of cellular respiration as well that we have discussed previously. Also, we will highlight the different phases that are involved in this breakdown of glucose. Finally, we will also cover what is the significance of this process. तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी कवर किया था कि इट्स अ प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इट ब्रेक्स डाउन इनटू एनर्जी, जिसमें कि स्पेसिफिकली हमने देखा था कि देयर इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब सेलुलर रेस्पिरेशन ऑब्वियसली इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर एरोबिक और एनारोबिक. दोनों केसेस में देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड. सो वी विल गो थ्रू इन डिटेल लेटर ऑन कि किस तरह से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो डिफरेंट हो रहा होता है, जिसमें कि एक तरफ ऑक्सीजन से है, दूसरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस कैसे अकर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू व्हाट ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली इज़, and then in our upcoming lecture we will discuss how this process it may occur in presence or absence of oxygen. Glycolysis specifically it is defined as a chemical process in which glucose it breaks down or it gets converted into pyruvate, plus there is release of water molecules and energy in form of ATP. Also there is formation of NADPH एज वेल. ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वाटर के रिलीज के साथ साथ एनर्जी फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ATP is going to occur. The two phases that we will now recognize during the process of glycolysis, they will be the investing, also known as the priming phase, यानी कि जो glucose है it will be preparing itself for being getting used up. And then we will go through the splitting phase, जिसमें कि oxidation होगी glucose की into its different components, and then later on it will split into releasing the energy and release of other different components. So we will start off with the process of glycolysis, that is the first stage of the cellular respiration, in which first of all the glucose molecule it is going to break down within the cytosol of the cell in presence of certain enzyme. So first of all this glucose it will combine with one of the phosphates that it is going to gain from the breakdown of ATP. ठीक है, तो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ़ौरन से अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ नोन एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक करने के एंजाइम्स नहीं पाए जाते. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट कन्वर्ट्स इनटू इट्स आइसोमर्स. आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि एक ही जो है वो मॉलिक्यूल है, बस उसके एटम्स में जो है वो उनकी जो अरेंजमेंट है दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो उसको हम आइसोमर कहते हैं कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स but their arrangement of atom is going to be different, so that is why it is known as fructose 6 phosphate. अब fructose 6 phosphate जो है it converts into fructose 1,6 phosphates. Why? इसका मतलब है कि एक और phosphate हमारे पास आ रहा है that is also a resultant of the breakdown of ATP molecule that attaches to carbon 1 position now, और एक already 6 position पे जो है वो phosphate है at the carbon. So now the product is fructose 1,6 phosphate. तो ये जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इसको हम कहते हैं प्राइमिंग फेज, कि जो ग्लूकोज है दैट इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग इट्ससेल्फ फॉर बीइंग यूज्ड अप.
ठीक है। तो प्राइमिंग और द इन्वेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं, या प्रेपरेटरी फेज की टर्म भी यूज़ की जाती है। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, एज यूजुअल इट्स अ हेक्सोज शुगर, ठीक है। ये हेक्सोज शुगर जो है ये 3 ट्रायोज शुगर में ब्रेक डाउन होगी, दैट ट्रायोज शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द हेक्सोज शुगर, और ये हमारे पास 2 ट्रायोज शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। सो अभी 3 नहीं हम लिखते, यहाँ पे ट्राई लिख देते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली ट्रायोज शुगर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों भी जो हमारे पास 2 ट्रायोजेज मॉलिक्यूल बने हैं, द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दे आर ऑल्सो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक के बजाय 2 ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। दैट विल लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कैसे बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ द NAD+, ठीक है। NAD+ की रिडक्शन हो रही है अगर, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट की, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं या हाइड्रोजन आयन ऐड होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब इसी से रिवर्स प्रोसेस हमने पढ़ा था ड्यूरिंग केल्विन साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसकी रिडक्शन होती थी, ठीक है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 ट्रायोज शुगर जो है वो फॉर्म हो रहा था, दैट इज़ लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोबेबली द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्स होता है, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ दिस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, what is going to happen now, it's going to lose one of its phosphate group and it will get converted into 3 phosphoglycerate, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ATP जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द फॉस्फेट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से फॉस्फेट ब्रेक करके ADP के साथ कंबाइन करेगा और ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे पास उनकी फॉर्मेशन हुई है, 2 जो हैं वो यूज़ अप हुए हैं, और एक हमारे पास NADH जो है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल द ऑक्सीडेटिव फेज़, कि जो हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, द ट्रायोज शुगर, उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स नाउ। So once the 3 phosphoglycerate molecules they are formed, that are 2 in number, that we have discussed already, the 3PG, जो 3PG molecule है, now it will just rearrange itself during the process of the oxidative phase that we have discussed we are discussing that already. The final product after the rearrangement of the 3 phosphoglycerate molecule is going to be the 2 phosphoglycerate. Why has this happened? Because 3 phosphoglycerate molecule that cannot be broken down within the cell, as the cell lacks the enzyme for its breakdown. So this molecule, it rearranges itself and converts into 2 phosphoglycerate, जिसका क्या मतलब है कि अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पोजीशन के ऊपर आ गया, रीअरेंज होकर मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस मॉलिक्यूल it will lose water and it will convert into phosphoenol pyruvate, ठीक है। So the two molecules of 2 phosphoglycerate, they will lose water and they will convert into phosphoenol pyruvate. ये जो phosphoenol pyruvate है, now it will lose its phosphate group, that will result in formation of ATP,
and phosphoenol pyruvate will convert into 2 molecules of pyruvate over here. ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फेट रिलीज होगा वंस अगेन वो ADP के साथ कंबाइन करके ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 ATP मॉलिक्यूल्स और बन गए। इससे पहले हमने क्या देखा था कि 2 जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने थे वो कब बने थे, जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि टोटल जो ATP फॉर्म हुए हैं इस प्रोसेस में वो कितने हो गए, 4। सो 2 ATP दे वर फाउंड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इट वाज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो 2 ATP यूज़ हुए थे, वन ऑफ देम वाज यूज्ड इन phosphorylation when glucose was converted initially into glucose 6-phosphate, और फिर fructose 6-phosphate जो है जब fructose 1,6-phosphate में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे 2 ATP जो है वो यूज़ हुए थे। इसके अलावा बाकी 2 रिएक्शंस हैं हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जिसमें 4 ATP जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो नेट ATP जो इसमें कंज्यूम हो रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी 2। इसी तरह से 2 ही मॉलिक्यूल हमारे पास NADH के जो है यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वो किस रिएक्शन में हमारे पास बने थे, जब हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है दैट बेसिकली ब्रोक डाउन इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। This is the end of our video, so do like our video if you have been able to understand the basic concept and the processes of glycolysis. Share it with your fellow students as well in the comment section. Do mention if you have any question relevant to the topic that we have covered in this lecture. Subscribe to our channel, click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.